बेटा आज ना हो गए ना कि मेरा 17-18 आना मैं अपने नगरों को भेजी था अरशद रात दूजे मैं नहीं जानता मैनू फद्या ना मेरे को मुकदमा ना डाणी ना देनी मैंने बड़ा परेशान किया इज्जत करते रहे ते नाल मेरे को 1500 रुपये लेंदे वो मैंने उत्थे जाके डक छड्या ते 2 घंटे अंदर ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ चौकी हाँ जी हाँ जी ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ देखें जीरो टॉलरेंस है ठीक है और वायलेशन ऑफ एनी लॉ तो इस केस में अब ये आप देखें मेरा पॉइंट पहले भी यही था मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि ये कंप्लेनेंट आए हैं ये मुनव्वर हुसैन साहब इनकी बात मैंने सुन ली अब क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दूसरे फ्री को प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए कि भाई आप आए आप हमें अपनी बात तो बताएं कि ये जो आप पे एलिगेशन रेज हो रहा है इसमें किस हद तक सच्चाई है किस हद तक सच्चाई नहीं है जो है तो हमें इतना कोई टाइम चाहिए कि उन्होंने मांग लिया हम 1500 रुपया नहीं छोड़ा सर हमें इतना कोई सिर्फ टाइम चाहिए कि ये बुजुर्ग भी आएंगे वो दूसरा फ्रीक भी आएगा ठीक है दोनों की आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी ये अभी आपके पास वन साइडेड स्टोरी है जो मैं आपको बात एक बार आपको रिपीटेडली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ ये आप समझ रहे हैं कि पुलिस वाले बड़े सुलझे हुए हैं नहीं मैं कभी नहीं मैंने कभी इतने बुलंदोबांग दावे नहीं किए बट पॉइंट ये है कि पुलिस वाले के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कोई इख्तियार नहीं है उसका कोई राइट नहीं है उसका कि उसको भी सुन लिया जाए अगर सुनने के बाद शुरुआत निकल जाता है पुलिस वाला तो उनके साथ क्या होने वाला है उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी किस दफा के तहत पर्चा हो नहीं पर्चा नहीं मैं आपको ये नहीं होना चाहिए सर जी भत्ता मांगा जा रहा है नहीं भत्ता नहीं मांगा जा रहा ना देने की जरूरत है भत्ता नहीं मांगा जा रहा है ये अभी सिर्फ मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर हो जाए भत्ता जो है वो उसको डिफाइन आप हमाद तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे फ्री को सुनेंगे तो मैं तो बगैर सुने आप नहीं कह सकते बुला लें तो वो तो आ गया बस ये अपने सामने भी आप सामने रखना चाह रहा हूँ मैं भी जुटा हूँ तो मैं भी मुझे भी पता मैं हम कर देते हैं जो है ना जी वो ठीक है जी आप बुला लें जी इनको भी बुला लें ठीक है मैं DSP सदर को इनके एप्लीकेशन मार्क करने लगा था नहीं इधर ही करते हैं छोटे मामले ही ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਗਾਜਰ ਵਾਲੇ ਗਾਜਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭਟੀਆ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ SHO ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ SHO ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਈ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਏ ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਾਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ SHO ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ SHO ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਗੱਲਿਆ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ SHO ਕੋਲ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਛੜਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ SHO ਕੋਲ ਗੱਲਣ ਲਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਬਣਾਓ
या इन नवे मामले हल ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਦ ਹੀ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ मतलब थाने में आपको सुपरवाइज कर लांगा ना होया तो मेरे को 100 बारी आओ 1000 बारी आओ। ठीक है जी। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हाफजाबाद में थाना कसुकी के हदूद में पेश आया। मियाँ बीवी के साथ एक ऐसा खेल खेला गया, ऐसा घिनौना खेल, जिसके बाद वो मुर्दा लाश की सूरत में हमें माशरे में नज़र आएंगे। तो तमाम तर मुलजमान गिरफ्तार हो गए, मारे गए या कोई बच गया? नहीं, इसमें ये इंसिडेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इंसिडेंट की जितनी भी मजम्मत की जाए उसमें पूरी राय नहीं है। ये इनिशियली इंसिडेंट हुआ था 25 अप्रैल 2025 में, और इसमें जब हमारे पास 3 जून को FIR हुई तो उसके बाद से लेके आज तक उसमें 3 एक्यूज जो है, जो नॉमिनेटेड एक्यूज थे, वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हुए हैं। एक एक्यूज्ड अभी बाकी है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और जिसके ऊपर CCD भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो मुल्ज़म की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई। मुल्ज़म इतना चालाक है कि वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया, रूपोश हो गया, कहीं छुप गया है। और एक ऐसा ख़तरनाक मुल्ज़िम जो मियाँ बीवी के सामने मियाँ की बीवी को रेप करता है, इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं बल्कि, और फिर उनको भी मुबाशरत के लिए मजबूर किया जाता है और वो एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो वो माशरे में जो जिंदा है वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो आपका क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है। इसमें मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा। इसमें जो चारों एक्यूज थे, चारों एक्यूज को मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। इसमें अगर आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे जी मास्टरमाइंड कौन है, तो शायद मेरे पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज वहाँ पे मौजूद। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज उन्होंने इस कपल को हरास किया, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल जो है वो इंटरेक्शन इनके साथ कमिट किया, इन्होंने इनकी फिल्मिंग की। तो आप अगर मुझे ये कहेंगे जी मुझे डिफरेंशिएट करके दे दें कि जी इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चारों के चारों 100% गिल्टी है। उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि 3 जो है वो उस केस की हद तक वो 3 जो है वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हो चुके। एक जो है वो उसके लिए जितनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं जी वो चल रही हैं, और उसमें मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि CCD अपनी जगह के ऊपर बहुत जेन्युइन एफर्ट्स कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अपनी जगह के ऊपर एफर्ट्स कर रही है। जो जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं इंटेलिजेंस के हवाले से, टेक्निकली कुछ चीज़ हमारे सामने आती है तो वो